Dear students, here is your instructor for linear algebra. Assalamu alaikum. So here I am just doing a recording for your lecture. Today there was no attendance in the class except a few, two students, just two or three students, I guess. So I just left the class and I was just not feeling delivering anything. The multimedia was also not working. So here I am again with recorded lecture because you are already busy. So I just want to discuss a few things about article number 4.5. It's just a small concept, but a very important one. Definitely the exercise number 4.6 and onwards, which are the part of our curriculum, and we have to go all the way to the chapter number 5, where we will be discussing eigenvalues and different things, exercise 5.1 and 5.2. So that we will only be able to cover if we just go in online mode. And that is that we will be just utilizing the full time available, the current week and then the later Eid, the week after Eid, so that we can just include the questions from these exercises in the final exam. So it is just a small lecture, inshallah. So it's about dimension. So what is dimension? I just will tell you, for example, R2 is a two-dimensional, R3 is three-dimensional. So actually, what is actually the dimension and how we just, these are simple examples of dimension. The number of bases in a vector space, the basis vector through which you span the whole vector space, that is called the dimension, the number of the basis vectors. For example, if I just go into paint just to demonstrate this, what I'm just showing that these is R2, and how many vectors you need to span this whole R2? Definitely two. So this two is the dimension. If there is also a uh, three-dimensional vector space, this, and that is, this is Y, this is Z, this is three-dimensional, and X. So this is three-dimensional. You need at least three vectors for spanning the whole R3. This is R3, right? So at least three vectors. You can span it for using four vectors. Then four vectors you can span, but then you will have a multiple ways of reaching the same point. This point can be reached through different ways if we have four vectors available. And definitely then, if there are four vectors, they will be not linearly independent. For having a linear independency, you have must equal number of the basis vector as of the dimension. मतलब डायमेंशन के बराबर के वेक्टर्स होने चाहिए. That's the one. All bases for finite dimensional vector space have the same number of vectors. This is the theorem. Theorem. You say what I have mentioned, that the number of the bases in a finite dimensional vector space. R2 is a two-dimensional vector space, so it has two bases. R3 is a three-dimensional vector space, so it has three bases. But these are n-dimensional space will have n basis vectors. So this is very easy for discussing R2 and R3, but sometimes it does get so a bit difficult to, and you need a calculations. So I will be just doing that, inshallah, explaining the things. So let V be an n-dimensional vector space and let n-dimensional. So there are n vectors. If set if a set in V has more than n vectors, then it is not linear independent. अगर आपके पास जो है V1 और V n+1 तक आ जाए इसके अंदर वेक्टर्स, एक वेक्टर इसके अंदर ऐड कर दें Vn+1, तो n डायमेंशनल स्पेस के अंदर n+1 वेक्टर्स नहीं हो सकते, n वेक्टर होंगे. तो अगर n प्लस वेक्टर्स हैं, 2 में 3 हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. 3 में 4 हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. If a set in V has fewer than n vectors, then it does not span V. तो मतलब ये है कि ये जो R2 है, ये सिर्फ एक वेक्टर से स्पेन नहीं हो सकता. इससे हम इस वेक्टर से हम ये वेक्टर स्पेस वेक्टर बेसिस हो सकती है. ये मैंने डायगोनल पे एक वेक्टर बना दिया, इससे बेसिस बिल्कुल हो सकती है. मतलब यू डोंट नीड टू हैव जस्ट द बेसिस ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, इट कैन हैव एनीथिंग. ये भी दो बेसिस हैं. ये हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट में लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हुए हैं.
अच्छा, तो मैं फिर भी करा दूंगा आपको ये वाला सवाल जो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कर चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा टिपिकल सवाल है। तो वो मैं आपको अभी कराता हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह, मे बी इन द नेक्स्ट, बिकॉज मुझे स्नैपशॉट लेना पड़ेगा और स्नैपशॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट में दे दूंगा। तो ये दो वेक्टर्स हैं, राइट। तो वो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको डिफाइन तो किया था थोड़ा सा, लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको सॉल्व भी करा दूं। तो ये बात है। तो अगर एक्स्ट्रा वेक्टर होगा तो नहीं होगा, और अगर कम वेक्टर है, दो R2 में नहीं है, R2 में, तो भी वो नहीं होगा। अगर कम वेक्टर्स हैं, एक ही वेक्टर है तो नहीं होगा। अगर ज्यादा वेक्टर तीन होंगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, एक को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स हैं, सिर्फ दो वेक्टर्स हैं, और दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके के हैं कि ये इसके स्ट्रेट लाइन में दूसरा एक वेक्टर है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये स्पैन नहीं करेंगे। दो वेक्टर्स तो हैं लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट भी होना चाहिए बेसिस वेक्टर्स को, राइट। अच्छा, चले अब आगे चलते हैं। Definition: If the dimension of a finite dimensional vector space V is denoted by V and is defined to be a number of vectors in a basis for V. In addition, the zero vector space is defined to have dimension zero. यानी अगर बिल्कुल जीरो ही है, इसमें कुछ है नहीं, तो इसकी डायमेंशन जीरो होगी। आर एन की डायमेंशन एन होगी, और पॉलिनोमियल है, उसकी डायमेंशन कितनी होगी? पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर एन, उसकी डायमेंशन एन प्लस वन होगी। क्योंकि देखें, एक्स रेस टू पावर वन होता है इसके अंदर, एक्स रेस टू पावर टू भी होता है, एक्स रेज टू पावर एन तक होता है, तो ये तो हो गया एन वेक्टर्स। लेकिन एक्स रेज टू पावर जीरो भी होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एन, दैट नीड्स एन प्लस वन वैक्टर्स। वन से लेकर एन तक तो एन हो गए, और जीरो भी चाहिए, एक्स जीरो, एक्स रेज टू पावर जीरो, तो दैट बिकम्स एन प्लस वन वैक्टर्स। फॉर राइटिंग ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ अप टू ऑर्डर एन, you need to have the basis vectors as n plus 1. तो थ्री में कितने basis vectors चाहिएंगे? और for writing polynomial of order थ्री, you will be needing फोर vectors. इसी तरीके से एक आपको मैट्रिक्स लिखनी है m of order of m and n, तो m rows and n columns, तो you will be needing uh, n multiply by n columns। दो अगर आपके पास हैं 2 by 2 मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स, तो इसके अंदर 2 by 2, तो फोर बेसिस वेक्टर्स चाहिएंगे आपको। अच्छा, if S is equal to this up to VR, then every vector in span S is expressible as linear combination of the vector in S. तो अगर स्पैन एवरीथिंग स्पैन एस, इस जो अगर ये जो किसी को भी जो जिसको भी स्पैन करता है उसको कहते हैं हम स्पैन एस, तो वो इसके कॉम्बिनेशन में तौर पे लिखा जा सकेगा डेफिनेटली। Thus, if the vector in S are linearly independent, then they automatically form a basis for span S, from which we can conclude that dimension of a span of S एक वेक्टर स्पेस है, वो उसको स्पैन करते हैं हम किससे? विथ these two थ्री, these R vectors starting from V1 to VR, and this spans the vector space। ये डेफिनेटली ये स्पैन है उसका, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? इसकी डायमेंशन R होगी। तो ये बात हो गई। अब ये है द मेन पॉइंट ऑफ दिस, द मेन typical thing of the main thing of this the application of the concept which we are discussing, the dimension of vector space। तो ये एक वेक्टर स्पेस कैसी है? जिसमें वो सारी सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दीज वेक्टर्स हैं। ये चार इक्वेशंस हैं, वन टू थ्री फोर, और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन हमने जो है वो एग्जाम्पल 6 ऑफ सेक्शन 1.2 में सॉल्व किया हुआ है, तो उसकी जो शक्ल निकली है वो निकली है पैरामेट्रिक सॉल्यूशन है। ये पैरामीटर सॉल्यूशन है, तो इसका जो जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। तो जो भी सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा? सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म का होगा कि भाई एक्स की वो सारी वैल्यूज, एक्स से लेकर S6 तक जो पॉसिबल हो सकती हैं, वो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसका मतलब है कि आर की वैल्यू हम कोई सी भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल जस्ट मेक द सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली, तो यूजिंग दोज आर एंड एस एंड टी, वी विल बी एबल टू राइट द सॉल्यूशन सेट। Parametric solutions, there are number, infinite number of solutions. So that vector space, that is called the solution set of the this homogeneous equation। तो वो क्योंकि पैरामीट्रिक है, तो हम कहते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, कितने डायमेंशन हमें चाहिएंगे इसके। तो हमें यहाँ से ये जो है ये फॉर्म मिली है कि दीज आर द वेक्टर्स, -3 4 S2, तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये इसका सोल्यूशन है। x2 को लिख लिख दिया कि x2 शुड बी इक्वल टू R, x3 शुड बी इक्वल टू -2S,
फिर कॉमा लगा दिया, फिर x4 इज इक्वल टू s और x5 इज इक्वल टू t एंड x06 इज इक्वल टू डेफिनेट जीरो। तो ये हमारे पास सोल्यूशन, इसका स्पेस है, सोल्यूशन है। तो हमें इसकी कितनी डायमेंशन क्या बनेगी? So what we will be writing is that we will be able to write this whole this solution space, the vector space, the solution space, the vector space. तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं? वो हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ से सारे r उठा लिए, -3r और r, और यहाँ से r कोई नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये हो गया -3, फिर ये हो गया -1, -1 कहाँ से आया? 1, 1 कहाँ से आया है? 1 कहाँ से आया है? ये देखें, इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 0 0 है। तो ये थे -3 1 0 0 हो गए। फिर एस में क्या है? एस में यहाँ पे -4 है, यहाँ पे एस में ये 0 है, फिर -2 है। तो -4 0 और 2, -4 0 एंड 2, एंड देन फिर आगे इस तरीके से। तो हमें जो है, अगर आर एस और ये टी लिखना आ जाए, तो वी कैन जस्ट राइट एनी सॉल्यूशन स्पेस, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट। तो इसका जो सोल्यूशन स्पेस होगा वो इस तरीके का होगा, जिसके अंदर 6 नंबर होंगे, 6 नंबर टपल होगा, 6 टपल होगा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस तरह x1 और x2 से लेकर 6 तक होगा। लेकिन यू विल बी एबल टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ओनली 3 वेरिएबल्स। तो जो इसके जो सोल्यूशन स्पेस बने, जो जो बेसिस बने, वो 3 वेक्टर्स बने, ये और ये। तो ये हो गया हमारे 3 वेक्टर्स, v1 v2 एंड v3। so these are the vectors of the solution, the basis for the solution space of this particular homogeneous equation. कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट वी डू नीड टू अंडरस्टैंड टू जस्ट डिस्कस देम। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग अप द एप्लीकेशंस ऑन दिस वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा की जो एप्लीकेशन है, जो वेक्टर स्पेस पर हैं, उसकी हमें, तो द वेक्टर स्पेस आउटसाइड द प्लेन can be adjoined to the other two without affecting their linear independence। तो अगर ये एक पार्ट, एक वेक्टर है जो कि इसके अंदर शामिल नहीं था। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये लेक्चर होल्ड करना पड़ेगा, पॉज होता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट पॉज हो जाता है। अच्छा, तो किसी की इंटरप्शन थी, सॉरी। अच्छा, तो ये अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा शामिल नहीं था, अगर अब इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं स्पेन में, तो जाहिर बात है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो द वेक्टर स्पेस आउटसाइड द प्लेन कैन बी एडजॉइंट टू द अदर विदाउट अफेक्टिंग देयर लीनियर इंडिपेंडेंसी। तो इसकी मदद, इन दो की मदद से हम ये तीसरा नहीं लिख सकते थे ना, तो अगर इसको हम तीसरे को ऐड कर देंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, एनी ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग टू विल स्टिल बी स्पेन द प्लेन। तो अगर तीसरा एक्स्ट्रा था, तो एक प्लेन को तो दो ही की जरूरत थी, तीसरा एक्स्ट्रा था, तो हम इसको रिमूव कर देंगे तो वो स्पेन बाकी रहेगा, कि दे विल बी द रिमेनिंग टू विल स्पेन द होल प्लेन। अच्छा, अगर कोई दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे और स्केलर थे, लेकिन ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, जब भी तो उसको हम निकाल लिया। इसी तरीके से ये भी लीनियरली डिपेंडेंट नजर आ रहा है, तो इनमें से दोनों में से कोई एक भी निकाला जा सकता है, या निकाल दो, ये निकाल दो, या ये निकाल दो। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि बेसिस वेक्टर को जरूरी नहीं कि वो 1 का ही हो। तो अगर ये 1 का था तो ये 1 का नहीं है। तो अगर हम ये निकाल दें या ये निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट कैन बी जस्ट रिमूव। ये पॉइंट डिस्कस किया हमने, और इसको हम कहते हैं प्लस माइनस थ्योरम। और इसको जो है समझना ही काफ़ी है, थ्योरम की ज़्यादा उसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखेंगे, इंस्पेक्शन के जरिए से हमें बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई द वेक्टर्स v1 v2 एंड v3 फॉर्म द बेसिस फॉर r2। भाई देखें, ये क्यों इंस्पेक्शन से बताना है, सिर्फ क्यों ये बेसिस वेक्टर हैं, क्यों है? इसलिए कि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दो हैं, इसलिए ये बेसिस है। अच्छा, ये v1 v2 v3 है जो है वो r3 के बेसिस हैं। कैसे? क्योंकि तीन है और तीनों में से तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ना होते तो ये बेसिस ना होते। और दीज आर द सफिशिएंट कंडीशंस, द नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन। अगर वो तीन तीन डायमेंशन का, तो 3 वेक्टर्स होने चाहिए उसके अंदर, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो वो बेसिस बनती है। अच्छा,
ये भी जो है, ये कॉन्सेप्ट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, प्लस माइनस वाला, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब ये देखें, द ओरिजिन जो है जीरो डायमेंशन का है, तो ये जीरो डायमेंशन है। लाइन जो होती है वो सिंगल डायमेंशन होती है। प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशन होता है। और जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, थ्री उसकी थ्री डायमेंशन होती है। ये इलस्ट्रेशन के जरिए दिखाया हुआ है। और दैट्स इट मे बी। ओके, तो ये हम यहाँ पे ये जो है खत्म करते हैं, और फिर मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड करा रहा हूँ फॉर वन क्वेश्चन इन द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज 3.4 शेयरिंग खत्म करनी है।